Therefore, we continue our chapter 5. Okay, unit 5. Let me share the PPT. Unit 5. Okay. Have you seen this screen? Yes, ma'am. Okay. So that day we have seen a number of policies, their modules, their approach, what is Mendiglani model, Walter model, है ना? So now their assumptions we have seen, some kind of relevance, concepts, and all we have seen that day, right? Yeah. So types of dividend policy. Okay. Today we have seen the types of dividend policy. So regular dividend policy is the payment of dividend at a usual rate is termed as a regular dividend. ना regular dividend like that कि मतलब जैसे जितना भी बड़ा शेयर होता है, if you have purchased any kind of share, so you will get a regular dividend. Nowadays bank what they do, if you have a saving account, so they monthly basis whatever the amount interest they will credit on your account monthly basis. So dividend is like that. जितनी भी बड़ी companies, big organizations या big stock market companies होती है, so they provide a regular basis dividend to their clients as per the policy, but depend on your investment. So if you are so many years investors of that company, then Tata pay regular dividend, Wipro pay regular dividend, Infosys pay regular dividend, what we say, SBI. If you purchase or buy SBI shares, they will pay regular dividend. Okay, so the payment of dividend at a usual rate is termed as a regular dividend. The investors, such as a retired person, widow, and other economically weaker person, prefer to get a regular dividend. Okay, so they will means continuously 20 years 30 years they have invested such a long time, so they are applicable to pay dividend. Now advantages of regular dividend policy. So what it is, it established the profitable record of the company. Okay, so रेगुलर डिविडेंड से क्या होता है कि आपकी प्रॉफिट दिखता है ना, positivity दिखती है कि yes the company is going good, so it creates the confidence among the shareholders, right? It get confidence कि shareholders have confidence कि no, that is means trust हो जाता है ना, नहीं ये कंपनी अच्छी है, LIC अच्छी है, so we need to invest it. ICICI is going good because he or he pay or it pay regular dividend, right? So it adds in long-term financing and renders financing easier. It um, stabilize the market value of share. So there is the uh, daily basis, if you buying selling, so the share value is increased day by day, otherwise not happen. Why not happen? Because no trust.
बहुत सारी कंपनीज आती आके चली जाती है, बट कुछ ऐसी कंपनीज है जो सालों से मार्केट में है, मार्केट में वर्क कर रही है, राइट। नाउ stable dividend policy. So the term stability of dividend means consistency of lack of variability in the stream of dividend payments consistently. Okay, so means no lacks, no variability. Sometimes it's happened when they will provide notice. Yes, this month they are not providing because of some kind of issue, but will provide both of, and the difference amount with interest you will pay this month, or will inform you soon. Okay, so that kind of message they provide or they send to their clients, so they will get a message, right, regarding payments, regarding dividend policy. So it means payment of certain minimum amount of dividend regularly. That means those company who have paid regular dividend, so the amount will pay regularly. A stable dividend policy may be established in any of following three forms, that is constant dividend per share, right, constant payout ratio, and stable rupee dividend plus extra dividend, right, whatever the difference they will pay. So आप इन्वेस्ट करके देखिए कोई अच्छा शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए, सो यू विल गेट बेनिफिट, यू विल नो कि यस मैम ने जो बताया था दैट इज ट्रू, कि लॉन्ग टर्म के लिए भी ये लोग क्या करते हैं, डिविडेंड। मेरे साथ हमेशा हुआ है कि मैंने जब भी लिया है, जैसे मैंने उस दिन बताया था ना जीवी के पावर के मैंने कब लिए थे, तो अभी भी मुझे वो कुछ भी हो, मतलब 10 रुपीज हो, 15 रुपीज हो, 17 रुपीज हो, अभी तक आता है, रेगुलर आता है। मतलब उस टाइम मैंने सोचा था कि यार ये कंपनी के शेयर मैंने फालतू लिए हैं, बट होता है उसका, काफी कंपनीज ऐसी होती है कि मार्केट में टिके रहने के लिए वो अपना वजूद नहीं छोड़ती है, कुछ ना कुछ देती रहती है, ताकि जो क्लाइंट्स है उनके जो रिलेशंस है स्टेक होल्डर के साथ वो कैसे रहे, मजबूत रहे। सो नाउ आई रियलाइज दैट कि नो, दिस इज द गुड कंपनी, और मैंने उसके शेयर्स रख के कोई गलती नहीं की है। मतलब आज 2008 20 ईयर्स हो गए हैं, है ना। तो दैट इज द इशू। सो आपका रेशो, आपका जो स्टेबिलिटी है डिविडेंड मिलने की, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये सब्जेक्ट, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी लैक ऑफ होते हैं, तो कंपनी क्या करती है उनको, अब आप में से कोई बच्चा अगर शेयर मार्केट कंपनी में काम कर रहा होगा तो शायद उसे पता होगा, आजकल ब्रोकर्स एजेंट ज्यादा होते, लेकिन एक्चुअल स्टॉक मार्केटिंग, कभी आप अगर मुंबई गए तो आप देखिए वहां का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, आपको समझ में ही नहीं आएगा, इतना बड़ा है, इतना बड़ा, ठीक है, कि कौन कहाँ बैठ रहा है, कैसे कम्युनिकेशंस चल रहे हैं, कौन क्या कितना मार्केट में सेल हुआ है, परचेस, वहां पे डिवीजन वाइज सबका है। बैंक का अलग है, बैंक में वहां का ये बहुत सारे एम्प्लॉय है वहां पे, जो हर एक एक बैंक का देखते हैं। देन सेल्स का अलग है, वेजिटेबल्स का अलग है, देन एवरी एन नंबर ऑफ, आप पागल हो जाओगे वहां पे, देखो हाँ कंटिन्यूअसली आप अगर कम से कम 2-3 साल जाओगे तो पता चलेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाइए, कभी विजिट करिए, किसी बहाने से जाइए, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि वाओ ये होता है स्टॉक एक्सचेंज, कैसे लोग वहां पे, टाइम ही नहीं होता है उनको, बट दे विल डीलिंग, बिकॉज टारगेट है रहता है ना, आज इतने बजे मार्केट बंद होने वाला है, इतने बजे, बट वो आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सो नो इशू, एवरीथिंग विल गेट इंस्टेंट, है ना। इधर आपने परचेस किया, उधर आपका बिल बन जाता है, उधर ऑटोमेटिकली अमाउंट आपको मैसेज आ जाता है। सो हाउ एडवांस वी आर, मतलब कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, राइट नो। सो दैट इज, नाउ वी हैव सीन एडवांटेजेस ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, और एथिक्स होते हैं, सबकी पॉलिसीज होती है, तो उस पॉलिसी के हिसाब से वो पेमेंट होता है। सो इट इज साइन ऑफ कंटिन्यूड नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, ऑफकोर्स, मतलब रेगुलर ही होता है, नॉर्मल, ठीक है ना। अगर कोई नया शेयर मार्केट में आ गया, उसकी भी पॉलिसी बन गई, उसको भी
काम पे लगा दिया, नया और आया उसको भी बंद किए, उसमें भी 100 लोगों ने परचेस किए, काम पे लग गए। तो ऐसे नॉर्मल ऑपरेशंस मतलब जो होते हैं एज यूजुअल, ठीक है। सॉरी। सो इट स्टेबलाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग द इन्वेस्टर्स, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ये पॉलिसीज परचेस होती है, ताकि आगे चल के उनका अमाउंट उनके काम आ सके। सो इट प्रोवाइड्स source of livelihood to those investors who view dividends as a source, जिनके लिए वो डिविडेंड, जैसे आपका रिटायरमेंट हो गया है और आपके पास पैसे नहीं है, पेंशन नहीं है, बट डिविडेंड का ही अमाउंट आपको इतना आएगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर आपने कहीं पेंशन प्लान लेके रखा है, वह अमाउंट आएगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ सोर्स हमारे पास होना चाहिए, राइट, ताकि हमारा डे का एक्सपेंसेस जो भी है, क्योंकि जब हम लोग ओल्ड हो जाते हैं तो हमें सपोर्ट नहीं रहता। अभी तो ठीक है, आप एनर्जेटिक हो, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, सब ठीक है तो आप कर लेते हो, बट आफ्टर 20 years 25 years यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, you are unable to do it lot of things, okay. So that is, so it meets the requirement of institutional investors who prefer companies with stable dividends, okay. So stable dividends जो है उसे मिलता रहता है। So danger of stable dividend policy, क्या है danger? So once stable dividend policy is followed by company, it is not easier to change. एक बार अगर ये देखिए, ये बहुत ही important है पॉलिसीज में स्पेशली, एक बार आपने अगर कोई प्लान परचेज कर लिया, मान लो, ठीक है, सारा हो गया, और आपको 2 दिन बाद लगता है नहीं यार मुझे ये प्लान नहीं ले रहा था, मुझे चेंज करना है, नो, रेस्ट्रिक्शंस है। आपने एक बार लिया, हो गया, एनरोल हो गए, आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें रूल ही वैसे हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉलिसी, कोई भी डिविडेंड पॉलिसी एक बार लेने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें जो रूल्स होते हैं वो आपको, और आप कभी देखिए इतनी बारीक इसमें होते हैं ना सारे, कि हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। किसी ने देखी है कोई पॉलिसी वगैरह, देखी है कोई, पढ़ी है डिविडेंड पॉलिसीज, देखी है कोई, नॉट ओनली डिविडेंड, LIC कोई भी पॉलिसी देखी है आप, देखिए उसके उसके जो कंडीशंस इतना सारा होता है ना, और कितना अच्छा है ना। मुझे वो एक अच्छा लगता है कि बाकी अगर हम चीज किसी से मांगते हैं तो हमें इतना डिटेल में देते नहीं मिलती, लेकिन पॉलिसी एक ऐसी चीज है जो हर पर्सन को डिटेल इंस्ट्रक्शंस के साथ मिलती है। पॉलिसी, उसमें आपका नाम, एड्रेस, एवरीथिंग लिया रहता है, आपका मैच्योर्ड अमाउंट, एवरीथिंग, और उसमें सारे डिटेल्स बारीक 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 2 पेज 3 पेज का, जितने भी पेज का, वो सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं। आप सिंगल हो तो क्या बेनिफिट है, आपके नॉमिनी है तो क्या बेनिफिट है, इफ यू हैपन समथिंग इन लाइफ तो क्या बेनिफिट्स है, कब होगा, क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग पढ़िए, कभी कभी पढ़िए। अगर जिन लोग को इंश्योरेंस क्लेम्स या इसमें जाना है तो प्लीज पढ़िए, सारे नॉर्म्स चेंज सब 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 पढ़िए उसमें, राइट। बट इसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने परचेस कर लिया तो आपको उसको 20 साल, इसलिए बहुत लोग सोचते हैं करे कि नहीं, करे कि नहीं, है ना। Now, if the stable dividends are not paid to the shareholders, the financial standings of the company in the minds of investor is damaged, है ना। It is stable dividends are not paid to the shareholders. अगर आपका जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर ने दिया ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में यार इसने अभी तक दिया ही नहीं, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 6 साल हो गए, अभी तक मेरा डिविडेंड ही मुझे नहीं मिला, क्या सोच के मैंने निकाला था। तो दैट काइंड ऑफ थॉट कम्स इन योर माइंड रिगार्डिंग द इन्वेस्टर्स, और आपके मन में वो एक निगेटिविटी आ जाएगी, डैमेज करना चालू कर देगा, यार नहीं अभी तक आए नहीं है, मैंने इतने साल से पैसा भरा है ना। सो बिफोर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, बिफोर परचेज एनी काइंड ऑफ पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स, so read carefully the rules and regulations. So if the company pays a stable dividend in spite of incapacity, it will be suicidal in the long run. Yes, है ना। अगर कंपनी ने पे करना ही बंद कर दिया, आपको पता चला आफ्टर 5 years की कंपनी गलत निकली है, तो आपने अगर जितना भी इन्वेस्ट कर लिया है 5 लाख के लिए, 10 लाख का, तो वो तो गया काम से। बहुत बार ऐसा हुआ है ना, बीच बीच में ऐसी कंपनीज आई थी जो बहुत लोगों से पैसा इन्वेस्ट कर रही थी, बोल रही थी कि हम 2 साल में 4 लाख देंगे, 5 साल में, और जैसे ही 2 साल हो गए वो कंपनी ही
भाग गए, उसका नामो निशान ही नहीं। तो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट मत करिए। बहुत सारे हैं, मेरी वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी इज डूइंग दैट काइंड ऑफ बिजनेस की नहीं, एंड वन डे शी केम एंड टोल्ड मी कि प्लीज इन्वेस्ट एटलीस्ट 50,000. आई एम योर फ्रेंड, यस शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, बट आई एम ऑलवेज अवेयर रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मुझे पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये हमारा फ्यूचर प्लान है। So I never invested with her, and after 2 years she came and again told her, Charlie, I was dumb of that business because इतने सारे लोगों के मतलब पैसे उसने, मतलब लोगों ने उसके ट्रस्ट पे सारे पैसे इन्वेस्ट किए जो आज तक नहीं मिले। गॉट इट? सो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट मत करिए बिल्कुल, इसमें नहीं। यू आर वेल एजुकेटेड, सो थिंक अबाउट इट बिफोर इन्वेस्टिंग। ट्रस्टिंग ब्रांड में इन्वेस्ट करिए, जैसे LIC है, टाटा है, टाटा के म्यूचुअल फंड्स है, तो ब्रांड में इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड ऑलवेज गुड। SBI के है। बैंकिंग में ज्यादा प्रेफरेंस होता है, नेशनल बैंकिंग में स्पेशली, है ना। बहुत सारी जो बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक है, सरकारी बैंक है, आई एम नॉट बिलीव ऑन दैट, राइट? सो डू इट। तो कंपनी पेज, मतलब ऐसा होता है ना कि अभी आपको पता चल गया, आप 6 साल से कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तो आप स्टूडेंट्स हो, है ना। मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया कि नहीं बच्चा इसमें करो, अच्छा है, आपने कर लिए, 6 साल हो गए और आपको पता चला कंपनी डूब गई। अब 6 साल में आपको उसके मान लीजिए 10 लाख मिलने वाले थे, ऑब्वियसली आपको टेंशन आएगा, ऑब्वियसली निगेटिविटी आएगी कि यार मैं कैसे वसूल करूं, मेरा तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट चला गया। थॉट कम्स, है ना। और उस लोग पे केस वेस भी नहीं होती है, क्योंकि उसको टाइम लगता है वो पैसे निकलने के लिए, बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है, कि वो CBI में चला जाता है केस, बहुत सारे ये होते हैं। सो बी केयरफुल in investment. So irregular dividend policy, what it is? So uncertainty of earnings, right? Irregular dividend policy में uncertainty of earnings, unsuccessful business operations, so lack of adverse effect of regular dividend on the financial standing of companies. Uncertainty of earnings means कभी कभी ऐसा हो जाए, जैसे कोविड में बहुत सारे कंपनीज थी वो बंद हो गई, डिविडेंड नहीं मिले शेयर्स, लेकिन जो भी अच्छी कंपनीज थी उन्होंने अपने क्लाइंट्स को मैसेजेस भेजे, या फिर सबसे मेन बात तो है कि कोविड में ही बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट में पैसे कमाए, seriously n number of people. So lack of adverse effects of regular dividend on the financial standing of the company. So company जब इतने बड़े बड़े इसमें इन्वेस्ट करती है तो कभी कभी उसका जो इफेक्ट होता है वो पूरे बिजनेस में आ जाता है, बिकॉज अगर आपने कंपनी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है किसी पॉलिसी पे या किसी शेयर पे, और अगर वो कंपनी ही डूब गई, मान लीजिए कंपनी ने पैसे, तो कंपनी ने जो पैसे भरे थे 25 लाख 50 लाख, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो बड़े बड़े शेयर्स परचेस करते हैं, तो गए बैड डेट में, वो कब मिलेंगे तब मिलेंगे, होता है। Then no dividend policy. No dividend policy. A company may follow a policy of paying no dividend presently because of its unfavorable working capital. What it is? Unfavorable working capital position, or on account of requirements of funds expansion and growth. ठीक है, so depends कि what it is. नो डिविडेंड तो आपने अगर उसमें लिख दिया, जैसे आप कहीं पेरोल पे ज्वाइन हो रहे हो और आपने बोल दिया कि मुझे PF नहीं चाहिए, सो आपको एक फॉर्म फिलअप करके देना होता है, तो आपकी सैलरी में से PF नहीं कटेगा, ठीक है। और इसमें भी जब भी आपको कोई पॉलिसीज लेनी है और आपने बोल दिया स्पेशली स्टॉक मार्केट मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए, तो वहां पे भी आपको एक फॉर्म फिलअप कर देना होता है कि नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे रूल्स है, ठीक है। बट न्यू पर्सन को ये सारी चीजें पता नहीं होती है। सो कंपनी में फॉलो पॉलिसी ऑफ पेइंग नो dividend presently because of its unfavorable working capital, so position or on account of requirements of funds expansion and growth, automatically hota hai, right? So forms of dividend, what it is? So dividend paid in the ordinary courses of business are known as a profit dividends, while dividends paid
sorry. So while dividend paid, what happens? So dividend paid in the ordinary course of business are known as profit dividends, while dividends paid out of capital are known as liquidation dividends. What it is? Liquidation dividend. So a dividend which is declared between the two annual general meeting is called interim dividend. 6 month. Okay, 6 month means in the month of Diwali, or in the month of October, and in the month of March, or September to March. Got it? Or September to March. So dividend which is declared between the two annual general meeting is called interim dividend. So while the dividend which is recommended to the shareholders at the annual general meeting is known as final dividend. It's known as final dividend. So both months you will get a dividend. Depend organization already declare about it. So what is cash dividend? Payment of dividend in cash result is outflow of funds and reduce the company's net worth. Through the shareholders get an opportunity to invest the cash in any manner they desire. Anyway, any manner आपको देंगे. Then skip or bond dividend. A skip dividend promise to pay the shareholders at future specific date. है ना? जब आपने बोल दिया कि नहीं मुझे एक साथ चाहिए, सो दे विल पे यू एट अ टाइम. ओके, और बॉन्ड आपका जो भी होगा. देन प्रॉपर्टी डिविडेंड आर पेड टू द फॉर्म ऑफ सम एसेट्स अदर देन कैश, सो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. एनी काइंड ऑफ, वहां पे आप कंडीशंस पढ़िए, एक खाद पॉलिसी तो पढ़िए आप, देन यू विल नो, देन यू विल गेट एन आइडिया व्हाट इज द सर्कमस्टांस, ऑन व्हाट बेसिस यू विल गेट, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, एवरीथिंग. एवरी शेयर्स का एक अलग अलग पॉलिसीज होता है हर एक का, है ना. सो स्टॉक डिविडेंड मींस द इशू ऑफ बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. इफ कंपनी डज नॉट हैव लिक्विड रिसोर्स इट इज बेटर टू डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड, है ना. सो डिपेंड करता है कि आपको कैश में चाहिए, आपको बोनस में चाहिए, आपको इंटेरियम चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? कंपनी. यू आर नॉट, बट वो मिलेगा, लेकिन आपको उसकी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करनी होगी. Now bonus issue, a company can pay bonus to its shareholders either in cash or in the form of shares, right? So many times in a company is not in a position to pay bonus in cash in spite of insufficient profit because of unsatisfactory cash position. कभी कभी cash नहीं होता है तो profit हो जाता है, so they will pay as their way. They will give the massive. Effects of bonus issues, what it is, it amount to reduction in the amount of accumulated profits and reserves. So there is a corresponding increase in paid up shares capital of the company. Corresponding. Okay, so effect of bonus issues like that, it amounts to reduction in the amount of accumulated profit. डिपेंड करता है कंपनी की प्रॉफिट पे, और ये जितना प्रॉफिट उतना ज्यादा आपको उसका क्या मिलता है? बेनिफिट्स मिलता है, राइट? जितना प्रॉफिट होगा उतना आपको उसका बेनिफिट मिलता है. गॉट इट? सो देयर इज अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी. कितना पेड अप है उससे तो कैपिटल बढ़ेगा ना. जितना भी आप देखिए कई शेयर मार्केट का 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या इंटर्नशिप करिए तो आपको पता चलेगा, लेकिन 6 महीने में भी पता नहीं चलता है. यू नीड टू स्पेंड मोर देन 2-3 years, राइट? Sorry. This is the object of bonus issues, to pay to shareholders of the company without affecting its liquidity and earning capacity, normal value and market value of shares. That is, so कितना है ना? नॉर्मल है, इन नॉर्मल है, कम हो गया, ज्यादा हो गया. आप फ्लक्चुएशंस देखते हैं ना मार्केट में, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, टीवी पे देखते होंगे, उसका ऐप आता है शेयर्स का, वो देखिए. When a company has accumulated huge profits and reserves and it desires to capitalize
this profit, so I'll use them on permanent basis in the business, right? ना? So डे बाय डे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका मतलब ऑर्गेनाइजेशंस का, है ना? तो डेफिनेटली ऑन दैट बेसिस पे कंपनी आपको डिविडेंड पे करेगी इन द डिफरेंस ऑफ लार्ज अमाउंट, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस अमाउंट के शेयर्स में, ठीक है? तो उसमें टैक्स बेनिफिट, अभी तो मार्च एंडिंग चल रहा है, बहुत सारे शेयर्स लोग परचेज कर रहे हैं टैक्स बेनिफिट के लिए, और हर मतलब हर पॉलिसी या हर डिविडेंड टैक्स बेनिफिट के लिए नहीं होता है ना, हर इसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, एडवांटेज नहीं मिलता है टैक्स बेनिफिट का, बट सम ऑफ लाइक दैट। सो बेसिकली मार्च में जो भी आप परचेस करते हैं फरवरी मार्च में, तो वो उसका आपको टैक्स बेनिफिट 100% मिलता है। So more attractive share price. Sometimes the intention of company in issuing bonus shares is to reduce the market price. Market price में उसको reduce किया जाता है of the shares and make it more attractive to investor. ठीक है? तो investors को दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए काफी उसका एडवर्टाइज किया जाता है, ताकि इन्वेस्टर्स जो है, जैसे अगर मैं 10 साल से या 15 साल से एक ही शेयर्स परचेस कर रही हूँ, तो वो मुझे हर साल फोन करके बताएगा कि मैम इस बार नई पॉलिसी आई है, नया इसके ये डिविडेंड मिलेगा, आपको इसमें इतना इन्वेस्ट करना है, डिफरेंट काइंड्स, फिर आपको इसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इस पे आपको टैक्स पे नहीं करना है, एवरी काइंड ऑफ, ओके। सो मार्केट में आपको भी कहीं से फोन आते ही होंगे, तो दैट काइंड ऑफ पॉलिसीज वी हैव सीन. So what is the difference stock dividend and stock split? So stock dividend means the issue of bonus shares to existing shareholders of company, and stock split means reducing the par value of shares by increasing the number of shares proportionately. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप डिविडेंड बोनस मिलता है आपको डिविडेंड पे कंपनीज का, सो ये कैपिटलाइज हो जाता है, मतलब जो डिविडेंड आप मिल रहा है वो कैपिटलाइज होगा, और स्टॉक स्प्लिट्स में क्या होगा कि जितना भी आपने शेयर्स लिया है वो इंक्रीज होगा, शेयर का वैल्यू इंक्रीज होगा, और वो प्रपोर्शन, उसका जो प्रपोर्शन आएगा, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है कि शेयर आपने 100 रुपए का लिया, स्प्लिट हो गया एज अ 10 रुपीज के हिसाब से, तो आपकी शेयर की वैल्यू 10 पर ईच है ना, 100 शेयर्स की, सो वो बढ़ेगा, है ना, 10 ईच, 10 शेयर 10 each rupees 100. So 100 में भी split into 10 shares, right? लेकिन आपने लमसम ले लिया, जैसे एक साथ ले लिया 2 लाख के 3 लाख के, तो उसका अर्निंग वो प्रॉफिट में जाएगा, जो भी मिलेगा उसका जैसे भी कैलकुलेशंस होगा as per the dividend policy or as per rules. So on that basis, so shareholders without affecting in cash position of the firm. नाउ लीगल एस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, है ना, एथिक्स होते हैं सारे, इसके सारे क्लॉजेस होते हैं, सो ऑन दैट बेसिस पे हम लोग उसे प्रिफर करते हैं. द टर्म डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग इट्स शेयर होल्डर्स. सो लीगल प्रोविजंस आर इंपॉर्टेंट. What sections? Section 250, section 2058, 206, 207 are working in dividend policies, right? So source of आप ओपन करके देख सकते हैं sections क्या है, और यही सेक्शन सेम आपको सभी जगह मिलेंगे. तो पर्टिकुलर डिविडेंड में डालिए डिविडेंड सेक्शंस 250, 205, 206 एंड 207, व्हाट इट इज एग्जैक्टली रीड करिए. सोर्स ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड, व्हाट इट इज, आउट ऑफ करंट प्रॉफिट. So dividend can be declared by a company out of profit for the current year arrived at after providing depreciation. डेप्रिसिएशन डिडक्ट होके अगर मशीनरी पे है तो, एसेट्स पे है तो. सो आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट व्हाट इट इज, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रॉफिट्स, ये सब उसमें होता है. सो डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10%, 5%, कितने ईयर के लिए आपने परचेस की है, 10%, 5%, तो उसमें डिपेंड करता है. ठीक है, तो कैपिटल कितना होता है, लेस डिपेंड 5 years, 10 years, है ना, on that basis. So the total amount to be drawn
फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फ्रॉम एक्यूमुलेटेड, है ना, डिपेंड कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कैसा है, एक्यूमुलेशंस क्या है. देन लॉट ऑफ प्रोविजंस आर देयर. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहां पे सबसे पहले ना, अभी जैसे मार्च चालू है तो बैलेंस शीट की प्रिपरेशन चल रही है या फिर ऑडिट चल रहा है उनका, इंटरनल एक्सटर्नल, तो वहां पे सबसे पहले शेयर्स परचेस करके, शेयर का डिविडेंड सब इश्यू करके, बोनस वगैरह दे के, अगर बड़ी कंपनी है तो उनका कैलकुलेशंस निकालना चालू होता है. क्योंकि हम लोग निकालते थे ऐसे, हमारा बहुत बड़ा शीट्स होता था, तो उसमें सबसे पहले कितने शेयर्स परचेस किए, उसका क्या वैल्यू था, सेल करना है कि रहना है, उसका एक्सपर्ट्स का वो सब अप्रूवल एंड ऑल सब करके, उसका पहले वर्किंग करके उसका हम लोग कैपिटल निकालते थे. और ऑन दैट बेसिस पे ऑडिटर से चेक करके, है ना, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर उस पे अप्रूव करते थे कि यस इतना कैपिटल रखना है कि नहीं, और क्या बेस पे उसको डिविडेंड इशू करना है. जब तक वो ऑडिटर हमें अप्रूव नहीं करता था, हम लोग नहीं देते थे. फिर जब उसने अप्रूव कर दिया तो हो गया, वो मतलब फाइनल करते थे सबसे पहले कैपिटल कंपनी का. ठीक है, वो इम्पोर्टेंट था. तो उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन, उसके रेशो, उसका परसेंटेज, डिफरेंट डिफरेंट वे से उसका कैलकुलेशंस करके फिर उसको फिक्स किया जाता था. राइट, उसमें फिर उसकी सारी एंट्रीज, प्रोविजनल्स एंट्री, एडवांस में परचेस है तो एडवांस एंट्रीज कब होगा उसके, ऐसी बहुत सारी एंट्रीज रहती थी, वो सब करनी होती थी, है ना, सारे बुक्स में, तब जाके कैपिटल दिखता था. तो ये एक साल में एक ही बार करना होता है, बट बी केयरफुल. ठीक है, केयरफुल भी करना होता है, और द ऑडिटर के साथ बैठ के, है ना, ऑडिटर अप्रूवल बाय ऑडिटर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो डिविडेंड की प्रोविजंस कब देने वाले, जैसे मुझे पता है कि अभी मार्च एंडिंग है, मैंने मुझे क्वार्टरली बेस पे नहीं, सॉरी हाफ ईयरली इंटरियम डिविडेंड देती है कंपनी. अब इंटरियम डिविडेंड देती है तो ये साल का कब दूंगी मैं, सितंबर में, राइट. तो अभी मेरा तो मार्च एंडिंग 31 में हो रहा है, बट मुझे तो प्रोविजनल एंट्री पास करनी है ना बाबा, कि भाई मैं दूंगी ना, है ना, अभी आएगा तब दूंगी सितंबर में, लेकिन प्रोविजनल तो एंट्री मुझे पास करना ही है, बुक्स में तो दिखनी चाहिए कि इन द मंथ ऑफ सितंबर आई हैव टू इशू दैट काइंड ऑफ ये. और जो इसके पहले दी है वो भी एंट्री नहीं है, तो उसे भी मुझे करना होगा. तो ऐसी प्रोविजनल एंट्रीज वी नीड टू पास इट नाउ. So according to section 205 the Company Act, no dividend shall payable except cash, provided that nothing in this section prohibits the capitalization of profit or reserves of company for the purpose of issuing fully paid bonus shares. Fully paid, है ना, मतलब अगर आपका प्रॉफिट अच्छा है, कैपिटल अच्छा है, तो कंपनी क्यों सोचेगी, दे देगी पूरा का पूरा, ले लो, right? So in the absence of any specific provision in article of association of the company, dividend is paid on paid up capital of company, right? Paid up capital पे dividend देना है. Now वॉल्टर मॉडल की डिविडेंड पॉलिसी, मतलब sorry different मॉडल्स है, सॉफ्टवेयर्स है जो पॉलिसी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. सो व्हाट इट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल, है ना, मॉडल्स कैसे है, एजम्पशंस क्या है उसके. जैसे हम लोग कोई नया सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं, स्पेशली फाइनेंस का, तो उसमें हम लोग देखते हैं जैसे टैली अगर आपने ईआरपी लिया एक्सट्रीमली सॉरी, तो उसमें हम लोग चेक करते हैं इसके सेल का इम्पैक्ट कैसा है, सेल की रिपोर्ट होती है कि नहीं, सेल की एंट्री करने के बाद उसका इम्पैक्ट कहा जाता है, हम चेक करते हैं. बैलेंस शीट निकलती कि नहीं, डेटर्स कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट होता है कि नहीं, ऑटोमेटिक मिलता है कि नहीं, डेटर्स की लिस्ट कैसी आती है ना, उसमें आपको डेट, उसका आउटस्टैंडिंग पीरियड, उसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग आता है कि नहीं, तो हम लोग कैसे चेक करते हैं. तो वैसे ही डिविडेंड पॉलिसी, जितने भी सॉफ्टवेयर्स है या फिर जितनी भी नई पॉलिसीज आती है, वो इस हिसाब से क्या बनाते हैं, उनका सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि नहीं, अगर या फिर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं कि ये पॉलिसी के लिए हम लोगों ने ये ऑप्शंस चुना है, सो हाउ वी चेक इट, राइट, सो हाउ वी मेक इट. तो वो चेक होता है, अजम्पशंस होते हैं उसके, क्या होना है, इफ कंडीशंस, है ना, कंडीशंस, अगर आपको एडवांस एक्सेल्स आता है तो कंडीशंस की, इफ
लेस देन इतना अमाउंट मिला तो उसका कितना, इफ ग्रेटर देन है तो उसका कितना। तो एजम्पशंस होते हैं, वो एजम्पशंस को फुलफिल करने के लिए हमें मॉडल्स या सॉफ्टवेयर को यूज करना होता है। एंड उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के बाद हमें चेक करना होता है कि इज इट बेटर और नॉट, राइट। सो कुछ इसमें रिपोर्ट जनरेट नहीं होता, कुछ इसमें चाहिए वैसा रिपोर्ट नहीं होता है, तो वो सॉफ्टवेयर का इश्यूज होता है। एसएपी तो अभी सभी जगह वास्ट है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज वो यूज कर रहे हैं। मैंने देखा है इंश्योरेंस कंपनी में भी एसएपी का बहुत अच्छे से यूजर है, क्योंकि रिपोर्ट एक्सेस जनरेट उनका कैलकुलेशंस बहुत होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेस पे वो लोग दे रहे हैं, तो 20 साल का कैलकुलेशन उनको अभी करना है ना। अगर किसी कस्टमर ने पूछ लिया नहीं भाई मुझे चाहिए, मैंने एलआईसी का देखा है और एचडीएफसी बैंक का भी देखा है, वो जो लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वो लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं, है ना। सो एजम्पशंस ऑफ मॉडल्स हो गया, मॉडल्स का वैल्यूएशन फॉर्मूलाज हो गया, सब उसमें होते हैं, है ना। जैसे आपको 3 साल का कैलकुलेट करना है, आपने नाम डाल दिया, उसका एज या डीओबी डाल दी, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस आएगा। सो एवरीथिंग यू नीड टू कैलकुलेट ऑटोमेटिकली। तो एडवांस एक्सेल्स या एसएपी जो भी आजकल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें सारी चीजें ऑलरेडी दी, लेकिन आपको फॉर्मूलेज पता होना चाहिए, उसका कैलकुलेशंस पता होना चाहिए। देखिए आप इवन आपने भी अगर कोई पॉलिसीज निकाली आपके पास आ गई, तो आप उसके कैलकुलेशंस देखे कि नहीं मुझे चाहिए, देते हैं। इवन आपने कोई प्रॉपर्टी लोन लिया हुआ है तो उसका भी 20 इयर्स तक का कैलकुलेशंस आपको मिलता है, उसको हम अमोर्टाइजेशन टेबल बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन चार्ट बोलते हैं, राइट। सो दैट इज सो implications ऑफ द मॉडल, न्यू implications। आप इफ यू feel like that कि नहीं, you are not satisfied for the software, so you make it new, you order new software, जिसमें आपको जैसे ही अमाउंट डालो वो मिल जाए। आप खुद भी बना सकते हैं एक्सेल्स में, if you are expert then you have to prepare n number of softwares, n number of calculations on your way. So sorry. So note on IRR, interest rate of return आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पीआर पर अर्निंग ये निकाल सकते हैं, पर शेयर का अर्निंग्स, नोट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एवरीथिंग कैलकुलेशंस पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंडीशन बेस पे जेम्स वॉल्टर ने फॉल, क्योंकि हम लोग उसका वॉल्टर का देख रहे हैं ना, तो उसका ये फॉर्मूला है कि लेस देन और ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। सो लेस देन है तो कितना, ग्रेटर देन है तो कितना, इज इक्वल टू है तो कितना, मतलब इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, है ना। तो ऑन दैट बेसिस यू नीड टू कैलकुलेट दी। और उसके assumptions है कि वो कहता है कि इंटरनल फाइनेंस होना चाहिए, कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका अर्निंग पर शेयर ये होना चाहिए, उसका 100% रिटेंशन होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला है वॉल्टर्स मॉडल का, हमने पढ़ा है ये, है ना। इसमें पढ़ा है अभी यूनिट 4 में, जब हमने वो वर्किंग कैपिटल देखा था, on that time we have checked it. So Walters formula calculate the market price per share, है ना, यहाँ पे दिया है, पीपीटी में आपको शेयर करूंगी, और ये ऑलरेडी हमने सीखा है इसलिए मैं अभी ज्यादा नहीं लूंगी, ठीक है। So P means market price per share, dividend per share, earning per share, internal rate of return of the firm and cost of capital of the firm। सिर्फ आपको इसके जो फॉर्मूला से उसका पता होना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट है, ठीक है। नो नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी सॉल्व किया हुआ है, जैसे कंपनीज का है, ये हमने सॉल्व किए हैं प्रॉब्लम मुझे अच्छे से याद है, वॉल्टर मॉडल का, मिंडिंगलानी का, देन गॉर्डन का, सबके प्रॉब्लम सॉल्व किया है, सबकी प्राइस अर्निंग पर शेयर्स पे कितनी आती है, क्या कैलकुलेशंस है, ये हमने देखे हैं। कुछ इसमें क्रिटिसिजम्स होते हैं, बट इट्स लाइक दैट कि इतना मतलब ये नहीं है, हर एक में होता है प्लस पॉजिटिव ना, पॉजिटिव निगेटिव सब में होता है। सो हमें ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है, ग्रोथ के बारे में सोचना है मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि नहीं, निगेटिविटी पे नहीं जाना है, ग्रोथ पे सोचना है।
होता है सम काइंड ऑफ, बट यू आर सेटिस्फाइड। अगर आपको वाकई में लग रहा है कि नहीं जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको वो चीज नहीं मिल रही है ट्राई करने के बाद में भी, सो दैट टाइम यू जस्ट सजेस्ट कि नहीं इसे चेंज करना है। बट अगर आपका काम हो रहा है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो सिस्टम ऐसा बनाया रहता है कि सिस्टम में सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है, बट हमें पता नहीं होती है बिकॉज हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं बोलो, या फिर हम लोग जानना नहीं चाहते हैं बोलो, व्हाट इट इज। ओके, बट एवरीथिंग इज मेंशन इन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ओके, डिपेंड करते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यही फॉर्मूलेज वहां पे भी यूज होते हैं, सेम, नो चेंज, नो मतलब कोई भी कैलकुलेशंस में चेंज नहीं होता है। गॉट इट? सो द रेशियो ऑफ कंपनी शेयर प्राइस टू इट्स पर शेयर अर्निंग्स, ठीक है, पर शेयर अर्निंग्स में प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ईपीएस माइनस एमपीएस प्लस ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स। कैसे ग्रोथ होगा डिविडेंड का? दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैसा कैलकुलेशन करेंगे? ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस प्लस एन नंबर ऑफ परसेंटेज 1 बाय प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। सब इसका आपको थियोरेटिकल ही है। गॉर्डन मॉडल में भी सेम दिया है कि पॉलिसी shows now maximize wealth of the shareholders. So the future dividends occurring to that shares and dividend payment and its growth of shares, valuation of shares. Okay, value it's depend. So the model holds that the share market price is equal to the sum of shares discounted future dividend payment. Future में उसका क्या impact आएगा? So this is the assumption, same like that, that the firm is always equity firm, rate of return is constant होना चाहिए, and discount rate जो है वो remain constant होना चाहिए कि 10% तो every year आपको 20% और 20% कांस्टेंट होना है, रेट ऑफ रिटर्न भी कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? सो द फर्म एंड इट्स स्ट्रीम अर्निंग पर मतलब परपेचुअल एंड कॉर्पोरेट टैक्स डू नॉट एग्जिस्ट। हमें फिर टैक्स नहीं पे करना होगा, है ना उसका, क्योंकि कंपनीज भी टैक्स पे करती है ना इन सब चीजों पे। द रिटेंशन रेशियो होना चाहिए उसका जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है, सो ऑल वे से उसको। और इसका भी गॉर्डन का फॉर्मूला है कि price is equal to earning per share open bracket 1 minus b retention ratio, cost of capital and growth rate, ठीक है। यहाँ पे उसका कैलकुलेशन दिया हुआ है, मार्केट प्राइस बजाज स्टील कंपनीज लिमिटेड का उन्होंने लिया है, पेमेंट जस्ट फॉर एजम्पशन, ठीक है। ये एक एजम्पशन बेस पे लिया है कि हाउ वी कैलकुलेटेड। इसे आप, मैं ये पीपीटी शेयर करती हूँ आपको, आप इसे देखिए और इसका कैलकुलेशंस कीजिए। 100% है, 10% है, 4% है, सो इट्स इजी, ठीक है। बजाज स्टील आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, मार्केट में इतनी सारी कंपनीज है, बट उसका रेशो कैलकुलेट होना चाहिए कितने परसेंट के साथ आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको टाटा कंसल्टेंसी का भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टाटा कंसल्टेंसी में भी बहुत सारे कैलकुलेशंस है जो उसके इसमें क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ, शेयर्स कैसा है, 3 इयर्स के लिए कितना लिया है, 5 इयर्स के लिए कितना लिया है, ठीक है। उसके आउटकम्स क्या होते हैं जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमें उसका इंटरप्रिटेशन जैसे आपने निकाले ना अभी चार्ट में आपके एसआईपी में, सो लाइक दैट, बट किसी ने भी फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं किया है। बैलेंस शीट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मंडिंगलानी का क्या है मॉडल? डिविडेंड पॉलिसी इज अ फर्म इज अ पैसिव डिसीजन व्हिच डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। वैल्यू मतलब फर्म पे कोई वैल्यू नहीं होगा। सो द डिविडेंड पॉलिसी इज अ रेसिडुअल डिसीजन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आपका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसा है उस पे डिपेंड करेगा। एंड व्हाट इट इज द assumptions, तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट होना चाहिए, टैक्स नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड सर्टेनिटी ऑफ अर्निंग्स।
जब भी हम परचेस करें तो इजीली बाय करना। हर एक का लॉजिक होता है एमएम थ्योरी में, क्योंकि जो भी प्लान या प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो एक तो लॉजिक होता है, उसका पर्पस होता है कि कितने साल वो मार्केट में रहेगा, तो वो कितने साल रहेगा उसके पीछे कितना बाय हो मतलब सेल होता है, डिपेंड करता है। So the latest assumed situations, lot of situations, conditions are there to buy and purchasing shares, investment in different kind of markets, right? So this is the some kinds of illustrations. ये हो गए हैं हमारे, मैंने ये डबल इसमें इसलिए डाला है कि ताकि आपको प्रैक्टिस हो। ठीक है, ये आपका थेरोटिकल है तो आपको थेरोटिकल क्वेश्चंस इसमें ज्यादा आएंगे। इसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिकली वो कैश फ्लो फंड फ्लो आपका जो हुआ है ना उस पे ज्यादा है। कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किए इसमें भी है एक दो क्वेश्चंस, अर्निंग पर शेयर और कैलकुलेशंस ऑफ द रेशियोज जो हमने निकाले, पे बैक मेथड, उस पे ज्यादा है। सो क्रिटिसिज्म ऑफ क्या है, टैक्स इफेक्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इनकन्वीनियंस कॉस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस, ये डिपेंड करता है वो किस तरह से आ रहा है। किसी को कुछ पूछना है क्या? डिविडेंड्स, स्लो, प्राइस रेट है ना, ईबीआईटी ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं, कैसे कैलकुलेट करना है ईबीआईटी, टैक्स, अर्निंग पर शेयर, आफ्टर टैक्स, मार्केट वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट 5 एंड नाउ वी डिक्लेयर दैट कि हमारा जो एएफएम का सिलेबस है वो टोटली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और भी किसी को कुछ पूछना है तो यू मे आस्क प्लीज। वन क्वेश्चन मैम। यस मैम वो टैक्स रेट कैसे कम करते हैं, मतलब ऑडिट के टाइम? टैक्स रेट कम नहीं होता है बेटा। टैक्स रेट आपको जैसे अगर आपका अगर मंथली सैलरी है उस बेस पे हम लोग टैक्स पे करते हैं। जैसे अभी जो रूल्स है ना, अभी क्या रूल्स है कि अगर आपको 3 लाख तक एग्जेम्पशन है ना, 3 लाख का या 2.5 लाख तक आपको एग्जेम्पशन है, मतलब आपने अपना सैलरी दिखाया, मंथली सैलरी अगर आपको 20,000 है तो 20 into 12 कितना हो गया, 2,40,000 समथिंग वट एवर। ठीक है, फिर आपका इन्वेस्टमेंट आप दिखाइए कहाँ कहाँ किया है। अगर आपका जो अमाउंट है, मान लीजिए सिर्फ मैंने इसमें डिविडेंड पॉलिसी कुछ नहीं लिया है, आपका अगर अमाउंट टैक्स पे आता है, अगर 30,000 सैलरी के हिसाब से आपका टैक्स पे आ गया 3,70,000, तो एग्जेम्पशन कितना है आपको, 3 लाख का, है ना, मतलब 3,70,000 में से ये टैक्स स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है ना? एग्जैक्टली, टैक्स स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 लाख आपने पे किया, 70 का आपको भरना है। अब आपको टेंशन आ गया 70 का क्यों भरो, तो फिर आपको याद आया अरे मेरी तो पॉलिसीज है। फिर आपने देखा कि आप मंथली कितना प्रीमियम पे कर रहे हो पॉलिसीज में, है ना, जैसे आप 10,000 पर मंथ पे कर रहे हो, है ना, तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से आप लाख रुपए पे कर रहे हो, है ना। अब क्या हो गया कि आपका जो टैक्स आया, पे टैक्सेबल जो अमाउंट आया वो 70 था, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, लाख है ना, उससे अगर उसको माइनस करेंगे तो आप तो बच जाएंगे, आपको तो 0 टैक्स आएगा ना। यस मैम, मैंने देखा है कि बहुत लोग टैक्स मतलब वो उनका टैक्स लगने से बचाते हैं। हाँ, तो वही तो इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, अभी आप यंगस्टर हो, अगर आपको अभी से कहीं इन्वेस्ट करना है तो अभी से करना चालू कर दीजिए, क्योंकि जब आप प्लेस हो जाओगे, अच्छी कंपनी में जॉब करेगा तो डेफिनेटली, और आपको पता है टीडीएस जिसका आपका जो ग्रॉस सैलरी है या जो ये है मेन सैलरी जो मिलती है आपको, वो अगर आपका 15,000 के ऊपर है तो आपका टीडीएस भी कटता है ना। तो टीडीएस जब आपका डिडक्ट होता है तो वो तो कंपनी ही पे करती है, वॉटेवर आपका प्रोफेशन टैक्स भी कंपनी पे करती है, तो वो नॉर्मल है, वो पे करना ही होता है। लेकिन अगर टैक्स से बचना है आपको तो इन्वेस्ट पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करिए जिससे आपको टैक्स कभी भरना ही नहीं पड़े। आजकल तो रिटर्न सबको भरने ही है, कंपल्शन है, 0 बेस, तो उससे क्या होता है, रिकॉर्ड रहता है गवर्नमेंट के पास, और टैक्स तो पे करना चाहिए, क्योंकि टैक्स पे नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। यस मैम। तो डिपेंड ऑन टैक्स स्लैब, और एवरी ईयर आपके टैक्स स्लैब जो है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। हाँ,
और शेयर मार्केट में भी वैसा ही, अगर आप शेयर परचेस करते हैं कोई अच्छी कंपनी का और एन नंबर ऑफ, उसमें भी ये होता है, कंडीशंस होती है कि आप कितने परचेस कर रहे हैं, 1 लाख कर रहे हैं तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर 40,000 50,000 के करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रही थी कि आप उसकी पॉलिसीज पढ़िए, बहुत बारीक बारीक बारीक, इसमें इतना इतना मतलब बारीक लिखा होता है कि हम लोग रेडी नहीं कर सकते उसको, बहुत सोच समझ के, इतना बारीक कौन पढ़ेगा भाई, है कि नहीं। हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के आप पढ़िए उसकी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आपको समझ में आएगा। यस, एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके मैम, थैंक यू। ओके, so take care, bye bye, have a good day to all of you. बाय मैम। थैंक यू मैम।